So psychological hurdles means whenever scholars go for research, they go through some problem, some hurdles. Okay, these are general hurdles student face. So I'll explain one of them one by one. Okay, like mental attitude, research importance, dealing with criticism, then early morning, cold start, theorem envy, fear of exposure. Okay, and after explaining this, I will close for today. So mental attitude means what can be inside that? Mental attitude means you must believe yourself. Okay, whatever problem you are tackling is important. Okay, you must believe yourself that whatever problem you are working is important and that your contribution to the solution is significant. Okay, if you will not believe yourself, then what will happen? Then otherwise, how are you be able to generate the energy to see yourself through the long hours of hard work required? Okay, अगर खुद को बिलीव नहीं करोगे तो लॉन्ग टाइम एक चेयर पे बैठ के 1.5 साल या फिर 3 साल काम करना मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू bring the mental attitude in yourself. You should believe yourself that I can do, I will be able to complete my research with specific questions. I'll able to solve those questions. Okay, that is your mental attitude. Then research importance means like doubt about your own ability. Okay, you are not confident. Every time you are confused, your own doubts will create problem for you. Okay, so doubt about your own ability can put you in a frame of mind where the dedication and enthusiasm necessary to produce result evaporates. Okay, अगर खुद को डाउट करोगे तो फिर क्या होगा? आपके पास जो भी एनर्जी होगा, डेडिकेशन, जो भी नेसेसरी एनर्जी चाहिए, वो सब नहीं रहेगा और आप का जो भी आइडिया है वो सब इवेपोरेट हो जाएगा. ओके, सो टू मोटिवेट यू, एडिशन सेड दैट genius was 1% inspiration and 99% perspiration. Okay, the way out of this vicious circle is to really realize that research ability does not depend on some magic essence. Okay, it is a skill which can be learned like any other. Okay, summary, research importance means खुद को डाउट मत करो. ओके, ऐसा करने से आपका डेडिकेशन और एनर्जी खत्म हो जाएगा और आपका जो भी आइडियाज है दिमाग में वो भी खत्म हो जाएगा. ओके, सक्सेसफुल पर्सन के पास 1% आइडिया होता है और 99% हार्डवर्क होता है. ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी होता है. देन आप ऐसा भी सोचो कि रिसर्च एक मैजिक नहीं है. ओके, ये हमेशा ऐसा नहीं कि जीनियस लोग करते हैं, ऐसा नहीं है. इट इज ए आर्ट, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट इज ए स्किल जो आपको एक ट्रेनिंग के बाद आप खुद भी कर पाओगे. इट इज ए स्किल व्हिच कैन बी लर्नड लाइक एनी अदर. ओके, थर्ड प्रॉब्लम, डीलिंग विद क्रिटिसिज्म. कुछ लोग होते हैं कि क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाते हैं. रिसर्च फील्ड पे क्रिटिसिज्म आपको सहन करना पड़ेगा. कोई अगर मीन्स टेक्निकल क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है कि आपका शर्ट पैंट कैसा है, आप हेयर ड्रेसिंग करते हो कैसा है, वो सब क्रिटिसिज्म में नहीं आता है. इट्स लाइक रिसर्च में आपका क्रिटिसिज्म, आपने कोई एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया
तो आपका लैबमेट या फिर सुपरवाइजर या फिर दूसरा फ्रेंड सर्कल उसको क्वेश्चन पूछ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है ना, आपका ड्रॉबैक निकल जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम है आपका डिजाइन में। ठीक है, तो जो भी क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको वो पॉजिटिव वे में लेके सॉल्व करना है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन टेक्निकली। इफ यू आर टू मेक प्रोग्रेस इन योर रिसर्च, you will have to learn to seek out criticism and take into account. Okay, you will have to learn to differentiate between valid and invalid criticism. Okay, take the valid one, don't note down invalid criticism. Okay, if you feel too close to the subject to decide, ask a friend for second opinion. Okay, कंफ्यूजन होने से आप सेकंड ओपिनियन लेना है। कोई क्रिटिसिज्म अगर इनवैलिड है तो मे बी द क्रिटिक्स हैज मिसअंडरस्टूड। ओके, कैन यू इंप्रूव योर एक्सप्लेनेशन? अगर आपको इनवैलिड क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसका मतलब आपने जो एक्सप्लेनेशन यूज किया है उसको वो समझ में नहीं आया, तो आप ट्राई करो कि कुछ डिफरेंट वे पे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, you are going to have to learn to take some knocks like rejection from journals. Okay, आप एप्लीकेशन करते हो, एक्सेल पेपर लिखा और सबमिट करने के बाद रिजेक्ट हो गया। ओके, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, जो भी रीजन है फॉर रिजेक्शन उसमें काम करना है। रफ राइट्स इन क्वेश्चन टाइम। ओके, take it with a smile, learn what you can, don't be tempted to give up, you are in a good company. Okay, so जो भी रिसर्च आइडिया है उसको आप पेपर में लिखते हो और वो रिजेक्ट हो जाता है, तब आप डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन अराइज किया गया बाय रिव्यूअर, you try to answer it in the paper and resubmit it. Okay, that is how you should deal with criticism. अर्ली मॉर्निंग कोल्ड स्टार्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च स्कॉलर को सक्सेस दे सकता है। लाइक जो भी काम करना हो मॉर्निंग में शुरू करो, ठीक है, और इजी से शुरू करो। ओके, कोल्ड स्टार्ट मींस इजी स्टार्ट। ओके, सुबह सुबह काम करना है और इजी वाला काम शुरू करना है। टफ वाला शुरू करेंगे तो कभी कभी पूरा दिन आपका थकान जैसा हो जाएगा। ठीक है, let me explain. Make yourself a regular working schedule. Okay, stick to it. It does not have to be 9 to 5, although for office time we are making it like 9 to 5, but sometimes it does not have to be 9 to 5, but there should be a definite time of the day when you expect to start work. Okay, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, लैब में नहीं आना होगा तो स्टूडेंट लोग घर में बैठे हैं। ठीक है, तो पूरा 24 आवर खुद के पास है, आपके खुद के पास 24 आवर है। तो आप ऐसा तो कोई टाइम निकालो कि 11 AM से शुरू करके 3 PM तक काम करेंगे। कोई एक डेफिनिट शेड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं है कि आज पॉसिबल है तो 11 से 3 काम करेंगे, कल पॉसिबल है तो 9 से 5 काम करेंगे। तो डिफरेंट शेड्यूल होने से आपका रूटीन मेंटेन नहीं होगा। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, यू विल फाइंड योरसेल्फ पोस्टपोनिंग द इविल मोमेंट विथ एंडलेस रूटीन डोमेस्टिक कोर्स। ओके, आज कपड़ा धोना है, आज मार्केटिंग करना है, आज ये दोस्त के घर जाना है, ये सभी चलता रहेगा, रिसर्च कभी नहीं होगा। ओके, तो एक शेड्यूल बनाओ खुद का, जो बेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हो। ओके, मेक श्योर दैट यू लीव सम नॉन थ्रेटनिंग एट्रैक्टिव टास्क टू डू फास्ट थिंग। जैसे आज आप कल के लिए कुछ प्लानिंग करके रखो कि सुबह सुबह इजी वाला टास्क जो ये नॉन थ्रेटनिंग है और एट्रैक्टिव काम होगा वो पहले से शुरू करेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल, डू नॉट लीव ऑफ राइटिंग द डे।
Okay, do not leave off writing the day before at the beginning of a new hard section. Okay, leave something easy to start writing, maybe a paragraph which is routine for you or a diagram to draw. Okay, that is early morning cold start. सुबह सुबह इजी वाला काम शुरू करना है. थ्योरम एनबी मीन्स कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स भी होते हैं जो पूरा पेपर में सिर्फ थ्योरम प्रोपोज करते हैं और थ्योरम को प्रूफ करने लगते हैं. जनरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में देखा गया है कि सिर्फ थ्योरम देते रहेंगे. ओके, सो ज्यादा थ्योरम देना भी सही नहीं है. So you have chosen a new field where the research methodology has not yet been worked out. You may get a hankering for the methodology you were brought up on. Okay, so for instance, proving the terminations of a procedure you have found to be useful maybe or will be relevant. Okay, so theorem and भी हमेशा सही नहीं है. Then fear of exposure. जो भी आइडिया आपने सोचा वो बाकी को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे आपका आइडिया चोरी हो सकता है या फिर क्रिटिसिज्म मिल सकता है. ओके, so such kind of fear also not good. Okay, let the pupil criticize your work, try to gather some knowledge from them also. Okay, so fear of exposure is also not good. Try to overcome the fear of exposure. So I have seen few students who are having fear to present. Okay, that is also not good. You should be able to present your ideas. So that's all